Yeah, to discuss educational reforms, educational system of Chamba. Okay, so be very confident whatever you are saying. Okay, and first of all, I just want to introduce my ZCA members. That you all are very well known to them, but just for the sake of formality. Okay, you know, this Nitin Bhaiya, one of my best Bhaiya in this Chamba, in this whole world. Okay, my Bhabiji, Ani Bhabiji. Harsh ma'am, computer teacher, and one of my colleagues from hospital department, she is Bharti Didi, and our sir, Stay Singh sir of mathematics. So it's a practice that Chamba people can know, come to know that where our youth is standing. Okay, where are they now? So it's a message apart for the Chamba people that we are doing something for them. It's not a work that whatever we are doing, that is not our part. I'm not doing anything for myself, and you are not doing for your own self. We are doing for others, and that work should be the best work, I suppose. Okay, so whatever we are doing here is because for the Chamba people, for the awareness, for the development. Mentality level they can improve by just watching these type of shows. Have you just watched such type of chat shows in the television? Yes, ma'am. Which channels? MTV. Okay, so it's a practice. Okay, that we just try to just start a new reform in our ZCA to start a chat show. Okay, so as you all are very well known, many of you I suppose, that our chat show is based on the education system of Chamba. Okay, which step, how can we improve our education system of Chamba? Okay, this chat show is totally based upon your thoughts, your mentality, your feelings. Whatever you are thinking, you have to express. Okay, no formality, no hitch, be confident and be cool. Okay, so what do you think that education system, okay, are you satisfied with the education system of Chamba? No? Raise your hands, how many of you? Only 1, 2, 4, 5, 6, 7. You are satisfied here? जो भी आप हमारे चंबा में जो हमारा शिक्षा का स्तर है, उससे क्या आप सभी सहमत है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का वो ठीक है? ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? बोलो। पढ़ाई नहीं ठीक हो रही। ये कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं ठीक हो रही। ठीक है, जैसे यहाँ हो रही है ना? हो रही है जैसे क्या पढ़ाते हैं? मैम पढ़ाते हैं। कौन सी मैम पढ़ाते हैं? एनी मैम पढ़ाते हैं। अच्छा, क्लैपिंग फिर। So I just want to know from you all that what is where are this state Himachal Pradesh stand in literacy rate? Just raise your hand, okay? According to the recent survey, where our state stands in education system? Sir, what do you think? Take it, sir. Take it. It's not that much horrible. Yeah, Second. You think? It's the second position. Okay. Right. So, Himachal Pradesh stood second in literacy rate all over in nation. Nations mean India में, country में हमारी. Okay. So, what do you think? Okay, I'm satisfied. I'm agree with this कि हमारा जो हिमाचल है वो second लेवल पे है, सेकेंड पोजीशन पे है अपने शिक्षा के स्तर को लेके। तो क्या चंबा डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो चंबा जिला है, उसमें भी कुछ तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट है किसके लिए? एजुकेशन स्तर के लिए, शिक्षा के स्तर को लेके क्या सोचते हो आप? है तरक्की? आप बोलो। लगता है कि मतलब
आप चंबा भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उसमें चंबा हिमाचल में सबसे नीचे स्थान पर सबसे कम, सबसे नीचे चंबा है। लेकिन अब चंबा जो है तो भर्ती कर रहा है, मगर हमें और भर्ती करनी चाहिए चंबा के जो और हिमाचल में पहले स्थान पर आप उससे आगे अभी मतलब हिमाचल देखा जाए तो चंबा शिक्षा में मतलब पीछे मतलब बाकी फैशन शिक्षा में चंबा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारा जिला है चंबा जो जिला है वो एजुकेशन सिस्टम में सबसे पीछे है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव इन आवर स्टेट? 12 districts. Okay, so means our ranking is on 12th number. That is the last one. Okay. So what do you think, students, that English is compulsory for us? What is the use? Is that is so much important for us? क्या इंग्लिश पढ़ना, अंग्रेजी को पढ़ना, सीखना, बोलना क्या वो जरूरी है? क्या आप सोचते हो? फिर आप बताओ क्या सोचते हो आप? इंग्लिश आजकल के लिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल इंटरव्यूज अगर कहीं भी देनी जाए तो हर जगह पर एजुकेशन का लेवल इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि अगर इंग्लिश जरूरी है तो इसका मतलब जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे आई सपोज 5th स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू होती है। अब हुआ है ना, अब हुआ है। उससे पहले हम लोग जो थे, आप में से सभी आई सपोज मैक्सिमम नंबर इज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर दे हैव स्टार्टेड इंग्लिश फ्रॉम 4th और 5th स्टैंडर्ड। तो हम लोगों ने अपनी ही वो दिखानी है ना। अब जो है ठीक है, हम समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डेवलप हो गया है, वो किसे देख के? हम लोगों को देख के। पर हम लोग तो उस चीज़ से सफ़र किए, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट जॉइन द इंडिपेंडेंट कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और ये वो सब कुछ हमने कर रहे हैं। ओके, तो क्या आप सोचते हो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश? अच्छा, थोड़ा पास आके। जरूरी तो है, एक बेसिक लैंग्वेज है। अच्छा, जैसे आप इंडिया में तो इतनी इम्पोर्टेंस इंडिया में भी है, आप तो कंट्री भी हाँ जी। इम्पोर्टेंस है। अच्छा, और तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, तुम्हारे अपने एजुकेशन लेवल के लिए वहाँ पे कोई काम नहीं करते इंग्लिश? करती है इंग्लिश, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप भी करती है। तुम क्या कहोगे? इंग्लिश इज मस्ट। ओके, अगर आज की जरूरत है और मैम कहीं भी देने के लिए जाए वहाँ पर हिंदी का जो है मतलब कम हो चुका है, महत्व कम हो चुका है। तो आज कैसे इंग्लिश को ही महत्व दिया जाए? ठीक है, इंग्लिश को ही महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, यू ऑल आर एग्री? गर्ल्स, व्हाट्स योर व्यूज? व्हाट डू यू वांट टू से? सीमा, आगे बुला लो। मैम इंग्लिश जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आपके ओवरऑल एटीट्यूड में, अगर आप बंदा इंग्लिश बोलना जानता है दैट मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और यहाँ पे जहाँ में तो आप देखिए हम प्लस 2 लेवल तक पढ़ बैठे हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम यहाँ चंबा से बाहर जाते हैं, चंबा को क्रॉस करके बाहर जाते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ मार्क खाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज करता है कि बाकी स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ मार्क खाते हैं। मान लो 70% हमने प्लस 2 में गेन किया है, वही स्टूडेंट चंडीगढ़ का स्टूडेंट या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट भी 70% गेन करता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में और हमारी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस है? हम कहाँ नीचे उस चीज़ से कहाँ नीचे गिर जाते हैं, बस इंग्लिश ना बोलने के कारण। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लस 2 तक आते आते स्टूडेंट को ड्यूरिंग हिज स्टडीज टीचर्स को ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी स्टडीज़ के दौरान भी उसे इंग्लिश भी आ जाए, इंग्लिश भी वो गेन कर जाए, ताकि उसे इंडिपेंडेंटली किसी इंस्टीट्यूट में जाके स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन ना करना पड़े, अलग से 3000 पे। So it means our education system is not that much perfect. That affects us. We are defected. That's why we are here. Okay? So अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्या हमारी +1 +2 स्टैंडर्ड में, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें एंट्रेंस एग्जाम्स को की भी तैयारी करवाई जाए? यही कारण है ना कि हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स can't clear their entrance examination, like AIEEE in engineering side, like PMT, okay, in medical stream and other IAS examination. So I suppose तुम लोग क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से तो मैं सोचती हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमें +1 +2 स्टैंडर्ड में करवानी चाहिए। तो आप क्या सोचते हो कि हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? सर आप बताइए। हाँ जी, अच्छा,
जोर से। हाँ जी, हाँ, टेस्ट देने से हम जब देते हैं, don't make noise, please, don't discuss. Whatever you want to say, just tell me directly, okay? हम टेस्ट लेते हैं इससे कॉन्फिडेंस होती है और हमारी तैयारी भी होती है अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा, आप ये कहते हैं कि हमें तैयारी करवानी चाहिए, हमारे टीचर्स को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवानी चाहिए, ठीक है, मैं ये इस बात से एग्री हूँ। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हम में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, बट ये चीज़ किसको इफेक्ट करती है? जिनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन जो होती है, फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है दैट नॉट दैट मच स्ट्रांग। तो क्या होता है, हम लोगों में से जिनकी स्ट्रांग फाइनेंशियल कंडीशन होगी तो वो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेंगे, बट सफर कौन करता है? मिडिल क्लास फैमिलीज। ओके, उन लोगों के पास फाइनेंशियल स्ट्रांग है उनका, ठीक है, वो वहाँ पे डोनेशन बेसिस पे भी सीट ले लेंगे, इन एनी स्ट्रीम ले लेंगे, बट हम लोग क्या होते हैं? वी आर ओनली कन्फाइंड टू द पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन आवर डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है, अपने ही कॉलेज में हमें जाना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग क्या सोचते हो, आप सब क्या सोचते हो कि हमें जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी मैं मानती हूँ प्लस 1 प्लस 2 में करवानी चाहिए, तो क्या तुम लोग सोचते हो कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल? टीचर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या तुम्हें लगता है तुम लोग भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए? मैं मानती हूँ कि टीचर्स नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते? इसमें ये भी तो हो सकता है ना, वी ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल। मैं तो मेरी क्लास में 10 बातें सिखाती हूँ, 16 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में होते हैं, ओके, उसमें से जो मैं कहती हूँ अगले दिन आके पूछती हूँ, क्या पता उसमें से सिर्फ 2 बच्चों ने उसको गेन किया। इट मीन्स तुम लोग भी अपनी अटेंशन पूरी तरह से नहीं देते, इट मीन्स वी ऑल आर फॉल्टर्स इन समहाउ, ठीक है, हम लोग भी कहीं पे दोषी हैं। तो क्या आप मानते हो मैम कि हम लोग हैं दोषी? हाँ जी मैम, क्योंकि जो कई बार क्लास में होता है कि हमारा दिमाग भी कहीं हो, ठीक है, और इससे हम इसलिए +1 2 में भी मतलब हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए, ओके, मतलब ये कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, पर मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को +1 प्लस 2 में आगे ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फ्रॉम आवर प्री नर्सरी क्लासेस हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज इट्स आवर ओन कैरियर, हमारा भविष्य है, ठीक है। इफ आवर बेस इज स्ट्रॉन्ग तो नो फोर्स कैन जस्ट हमें रोक सकती है कि आप लोग ये ना करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को इतना प्रिपेयर होना चाहिए क्लास में कि तुम टीचर्स का दिमाग खाओ, इतना ज़्यादा तुम्हें उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम अपनी जो है सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह से कमांड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जितनी हमने क्लासेस क्लियर की, ये सिर्फ पास होने के लिए क्लियर की है, जस्ट टू गेट द परसेंटेज? आपको क्या लगता है? तनिका, आपको क्या लगता है? हम कुछ बच्चे पढ़ते हैं जॉब के लिए, कुछ पढ़ते हैं अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए, और कुछ बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी पढ़ाई कोई काम नहीं आती। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, तब तो हम लोग क्या करेंगे? अगर वो हम लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है, अगर बच्चे ये सोचे कि हम लोगों ने कुछ करना है, तब हमारा कोई फायदा होगा। बच्चे ये सोचेंगे, you people can contradict her. If she is saying anything wrong, if you don't feel good, whatever she is saying, you are not agree with her statement, so you can contradict. Ma'am, she is not saying right. Okay? अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, तो क्या फायदा पढ़ाई का? हम लोग को चाहिए कि हम लोग ऐसा सीखें कि हम लोग पूरी दुनिया को पढ़ा सके, हम किसी के पीछे ना चले, दुनिया पूरे हमारे पीछे चले, इस तरह से पढ़ाई हुई। सीमा, आप क्या कहोगे? कनिका की बात से मैं एग्री हूँ, ये कहती है कि हम ऐसा पढ़ें कि दुनिया को पढ़ा सकें, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे +2 और ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस ऐसा नहीं है कि वो हमें नौकरी दिला सके, ऐसा सिलेबस नहीं है। फिर भी हमें, आप देखिए, BA या BSc किए हुए स्टूडेंट को इतनी ईजिली आज जॉब नहीं मिल जाती जितनी 80 पोस्ट में मिल जाती थी इस वक्त जो करते थे। लेकिन आज देखिए, आप BA कर लेता है स्टूडेंट या MA कर लेता है, फिर उसे लगता है कि कुछ खाली है, उसे वोकेशनल कोर्सेज की ओर डाइवर्ट होना ही पड़ता है, जिससे वो अपना स्ट्रॉन्ग साइड बाय साइड खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारा सिलेबस सिस्टम है दैट शुड रिलेट टू द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो चेंज होना चाहिए।
आप लोगों को ये लगता है? Here I want to put a question for the students. दिव्या बच्चे, जैसे आपने कहा कि जैसे पहले हमें जॉब्स प्रोवाइड हो जाती थी, मिल जाती थी, आज हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेल क्वालिफाइड लोगों की लोग ज़्यादा हैं, पर हमारे पास पोस्ट कम है, वैकेंसीज कम है, ऐसा है? मतलब ये आप कहना चाहते हो? पर मेरा मानना इसे थोड़ा सा डिफरेंट है. You just have to tell me, all of the students, how many are agree with me or how many are contradicting me here, okay? मेरा मानना है कि हमारे पास ना जॉब्स की कमी है, ना वैकेंसीज की कमी है, वो आज भी उतनी ही है. फिर भी आज क्वालिफाइड पर्सन्स कम है, क्योंकि हम हजारों वैकेंसीज, हजारों रिक्वायरमेंट्स रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. Why we don't apply for that? It means something least is there in ourselves. हमें कुछ कम है. तो आप कितने एग्री करते हैं इस बात से कि आज क्वालिफाइड पीपल आर लेस देयर, वैकेंसीज आर स्टिल as much as there are. वो है कि पहले पॉपुलेशन का भी वो था, एवरीथिंग कम्स इन दिस पॉइंट. कितने एग्री करते हैं इस बात से कि रिक्वायरमेंट्स है, पोस्ट है और वेल क्वालिफाइड लोग कम हैं? कितने सारे एग्रीमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर. ये सब इसके अगेंस्ट में कि जॉब्स है पर लोग नहीं हैं उनके लायक वहाँ पर. तो क्या चीज़ है जो आपकी लियाकत और बढ़ाएगी? मैं इसका आंसर बहुतों से चाहती हूँ. तो नितिन, जैसा कि मैम ने कहा कि काबिलियत नहीं है, काबिलियत है मैम, लेकिन जिनकी काबिलियत होती है उनकी सिफारिश नहीं होती. बहुत स्टूडेंट है जो रिटन क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आगे जाकर उनको दबा दिया जाता है. और यही वजह है कि मैम राजनीति शिक्षा पर हावी होती है. वेरी गुड. इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन. ओके, ये कहना चाहते हैं कि जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम वो पॉलिटिक्स के दायरे में आ गई है. पॉलिटिक्स अपनी जगह है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन 100% स्टूडेंट्स, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगी नितिन के साथ कि 100% स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर ही नहीं आते हैं. कुछ ऐसा नहीं आता, कुछ ऐसा भी है कि हमें वो टीचिंग स्टाफ ही नहीं मिल पा रहा, तो हमें तराशने वाला ही नहीं मिल पा रहे कि हम आगे स्टैंड कर सके, खुद में हमको कॉन्फिडेंस ला सके कि हम किसी स्टेज के सामने खड़े हो सके. मैं ये कहना चाहूँ हमें ऐसा मतलब स्टेज नहीं मिल रही है जो हमें आगे ले जा सके. ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर ऐसी कोई स्टेज ऐसा कुछ मतलब प्रोवाइड नहीं कर रही है ना सरकार. किस स्टेज की बात कर रहे हैं आप? जो जैसे मैम आपने कहा कि हमारे पास मतलब वैकेंसीज तो बहुत है, लेकिन हम लोग करने वाले कोई नहीं. मगर यही बात है कि जैसे हम लोग करना तो चाहते हैं, मगर ऐसी शिक्षा नहीं हम लोगों को मिल रही है जो हम कुछ कर सके. उस लेवल की शिक्षा नहीं मिली है. जैसे कौन सा लेवल? जैसे मैम हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, अब यहाँ पे जो क्लासेस होती है, जैसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लगती हैं, तो हम यहाँ पे आके एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ना कि हमें पहले से ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है. हमने पहले तो कहा कि नर्सरी से कुछ ऐसा मतलब ऐसा बेस देना चाहिए सरकार को, ताकि हम आगे सफर ना करें इससे. इंग्लिश तो मैम एक एग्जाम्पल था. You just put on, disclose every example here. Don't feel anything about what we don't know our own interest. Oh, very good point. इस टाइम हम लोग को अपना इंटरेस्ट नहीं पता कि हम क्या करें. Elaborate करो. ठीक है? I have seen that program in some channel or news channel. They were like a counseling type of Oh, sure. वो कह रहे थे कि you have to go to the counselor, or your parents should encourage your students to go to the counselor, or sometimes some kind of institute like. जब वहाँ पे वो बताएंगे कि आपको एक टेस्ट होता है, उस बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस ठीक हो उस टाइप में वो उसमें से निकालते हैं कि स्टूडेंट विच स्ट्रीम स्टूडेंट वांट टू कहाँ जाना चाहते हैं. तो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो बाकियों को क्या करें. कि हम लोगों को काउंसलर चाहिए. शेफाली के आंसर से एक बहुत अच्छी जरूरत, एक नीड निकल कर आई है कि हमको ऐसे सेंटर्स चाहिए जो हमें डायरेक्ट कर सके कि हमें किस फील्ड में जाना है, जिनको हम अपना इंटरेस्ट ध्यान से बता सके. यस मैम, वैसे तो देखा जाए तो हम सब के पास जो क्वालिफिकेशन भी है, वेरी गुड, परंतु हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं. रिक्रूटमेंट तो बहुत है, लेकिन
जैसे हमें यहाँ पर स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है अच्छा और हम उसका जो पेन भी नहीं लेते हैं कि भाई हमने ये टेस्ट या फाइट करना है, उसे हम खेल ही खेल में ले लेते हैं। ओके उसी चैलेंज शिवाली जरा खड़ा हो, पीछे पड़ जाते हैं। हाँ ये दिखाई नहीं दे रहा, कैमरे में नहीं आ रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा। मैंने वही देखा था कि उन्होंने एक स्टूडेंट का फोन था, वहाँ पे लाइव शो था वो, तो उसको उन्होंने कहा था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अवर दिस इंजीनियरिंग टेस्ट, और मतलब उस स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के। तो एटलीस्ट स्कूल में एक क्लासेस टाइम में नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा हॉलीडेज टाइम में तो वो 1 महीने का क्रैश कोर्स शुरू करवा सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर इंजीनियरिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ताकि पता तो चले स्टूडेंट्स को कि आता क्या है। अगर यही पता नहीं होता तो आगे क्या करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमें ऐसे काउंसलर्स नहीं मिलते जो हमारे इंटरेस्ट को डेवलप कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो दे कांट फिगर इट आउट कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, इवन उनके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसे में हमें काउंसलर चाहिए कि हमारे सभी इंटरेस्ट को देखें, उसका लेवल देखें, इसमें इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर हमें बताएं कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अब हमारे यहाँ पे एक हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में अब हमें ये जरूरत है कि वी हैव द काउंसलिंग सेंटर्स। बहुत अच्छे 2 वेरी करने वाले सजेशंस हमारे सामने आए हैं। एक जगह शेफाली ने पुट किया कि हम स्टूडेंट्स को या इस लेवल के स्टूडेंट को कईयों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, मतलब वो अननोन है अपने ही इंटरेस्ट के बारे में कि उन्हें किस लाइन में जाना है, क्या चूज करना है, और मोस्टली वो डायरेक्टेड होते हैं अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स के थ्रू। वहीं पर हमने एक वेरिएशन पाई प्रशांत के सजेशन में। प्रशांत का कहना है कि द कंडीशन इज नॉट ओनली ऑफ सच काइंड, ऐसी भी केसेस हैं जहां पर एक स्टूडेंट के मल्टीपल इंटरेस्ट है और वो उन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रखता, वो उसमें क्वालिटीज भी उन सबको फुलफिल करने की। उस टाइम वो कैसे डिसाइड करे कि विच वन इज द बेस्ट, बिकॉज व्हेन यू लाइक समथिंग दैट कम्स इन अ लेवल, यू गिव सेम प्रायोरिटी टू every interest of yours. So there also you require a counselor who can make it, who can highlight it that yes you can prove good in this, because ये third person होता है जो आपको बता सकता है कि क्या चीज है जो आप में उभार लाती है। Very good, the very good 2 suggestions. जैसे अभी शिफाली और प्रशांत ने काउंसलर की बात की है, मेरे हिसाब से मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले आप अपने आप को काउंसलिंग करिए। आप तब किसी तीसरे की राय लीजिए, पहले आप खुद निचोड़िए अपने आप को कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। देखिए इतने हमारी मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस हो चुका है आप हमारे को कि हम लोग एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, तो वो हमारे को आंसर देता है कि वो पायलट, इंजीनियर या कोई डॉक्टर, इस तरह की वो ग्लैमरस फील्ड को दिखा देगा। लेकिन यही बात अगर आप बड़ों से पूछी जाए तो आप सिर्फ एक आंसर देते हैं, सर अभी डिसाइड नहीं किया। आप वही बचपन में आंसर देते हैं कि मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और 18 साल की उम्र में आगे जब आपको एम डिसाइड करना होता है तो आपकी वो सीमाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। आप उनको कह देते हैं कि मैंने तो अभी डिसाइड ही नहीं किया है। तो क्या उस बच्चे को ठीक माना जाए या उस 18 साल के बच्चे को ठीक माना जाए? आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ उसको 18 साल के बच्चे को कि वो एम ही भूल गया अपना। तो काउंसलिंग की जरूरत उसको पड़ती है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि काउंसलर की जरूरत उस चीज को पड़ती है जब आपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहा, तो काउंसलर की जरूरत उस बच्चे को हुई ना। आप प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। सर आपने 18 साल के और एक 6-7 साल के बच्चे की बात की है। सर एक छोटा सा स्टूडेंट अपने डिसाइड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के अलावा कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है? अपने टीचर गुरु के पास। तो क्या टीचर का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो 5-6-7 घंटे उस टीचर के पास रहता है, तो टीचर को क्या पता नहीं चल जाता कि उसके पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस लाइन की ओर है? तो क्या ये स्कूल लेवल से ही शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए कि वो जहाँ प्रशांत ने बात की थी कि वोकेशनल कोर्सेज की या उसके आफ्टर +2 कहीं कोचिंग पे जाना चाहिए, तो क्या स्कूल में अगर ये चीज़ स्कूल में ही शुरू कर दी जाए, ये एक्स्ट्रा पीरियड लगा दिया जाए, ये 1 घंटा का हॉलीडेज का, जैसे शिवाली दी ने बताया था कि 1 घंटा एक्स्ट्रा हॉलीडेज में करवा दिया जाए, तो क्या
स्कूल लेवल तक की बात नहीं बन जाएगी इस चीज़ के, जहाँ हम हाईएस्ट मैं हम आपको सीनियर इसका- स्टेट मैं लेवल की इसका बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने मैं आप बताइए, आप भी कुछ बोलने वाले थे। मैम ये सर ने कहा कि एक बच्चे से पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली कह देता है, जो कि एक बड़ा नहीं कर पाता। वो मैम उस वक्त वास्तविकता से नहीं बताता Very है। good. जैसे जैसे बड़ा हो जाए से पता चलता है कि स्कूल में क्या कंडीशंस है, टीचर्स हैं या नहीं है, वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अगर वो ठीक पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे बाद में बताओ। डॉक्टर बनना चाहता है तो वो उसके टीचर्स से वो एजुकेशन दे पा रहे हैं जिससे वो अपने आप को सिद्ध कर सके। अपने एम को पूरी कर सके। एज में हम किसी मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एज के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चलता है, जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं।